So good morning everyone. Today I am going to explain how complementary addition will perform subtraction. So let us see binary subtraction. Okay, and this is our main target. So binary subtraction. So there are two methods actually, 1s and 2s. Okay, 1s and 2s. Fine. So 1s is just to understand the concept. Otherwise, there is no such concept available for this. But let us see. Suppose one number is given 1011, and if you want to add 1001, then what will be the result? The result is 1 plus 1 is 0 and carry 1. 1 plus 1 is 0, carry 1. Then 1 plus 0 is 1 and no carry, and 1 plus 1 is 1 0. So this is our answer. This is written as 11 in decimal and this is written as 9 in decimal, and the answer is 20 in decimal. Let us see how this answer will come. So if you expand this number 0, 1, 2, 3 and 4, so this is 1 into 2 to the power 4 plus so many zeros are there. That's why I'm skipping the term of 0 and only using the term which is not consisting of any 0. Then 1 into 2 to the power 2. So what is the answer? 16 plus 4, that is equals to 20. ये आपको बनना चाहिए, ये सारी practice में रहना चाहिए. Okay. So this addition is very easy. Now subtraction. This portion is only addition. Okay. Now come to subtraction. Yes. Any doubt? So fine. So subtraction. Initially we start with 1s subtraction. 1s. Okay. So in this 1s subtraction, suppose you want to subtract from 11, or suppose this is 15. Okay. 15 minus 9. 1001. What will be the answer? And we are going to do only binary number. Okay, only binary number, not other, because this is only motto and this is the ultimate thing which you want to learn. Now this subtraction is quite easier because the lower number is very good, so there is no problem. But in binary arithmetic, binary arithmetic, there is no concept of subtraction. Okay, only concept which exists is concept available is addition. Okay, complement and comparison and shift. Okay, so only these operations are available. So how do we perform subtraction then? So our scientist has done the thing very cleverly. Our main number is 1111 using 1s complement method. Okay, using 1s. Okay, second number is minus 1001. So let us start. जो number sign है, number which is unsigned, put as it is 1111, and the sign number, calculate the 1s complement. So what number we will add? So it will become complete. Okay, so for 1 no need to add anything. Okay, so therefore 0, and for 0 we need to add 1, for 0, and 1's complement is 0. Then add these two numbers. If you add these two numbers, if remainder is there, it means answer is positive. If no remainder, then answer is negative. 1 1 1 0,
carry 1 1 1 1 1 and carry 1 1 1 0 and carry 1. It means this is our additional carry. It shows the result is positive. Okay, and we need to add this number here. So this will give you 0 1 1 0, and 0 1 1 is 0 is nothing, but it is 6. Okay, you can calculate, it is 6. Fine. So this is 1s complement method, one problem. This is our answer. But suppose if the opposite is the case means 1 1 1 1. Second problem is 1 1 1 1 and 1 0 0 1. If you want to perform this negation, and this is the positive, in positive case always answer is correctly available, but in negative you won't be able to predict. Actually answer is correct, but only I can understand, or the person who is having the binary logic idea can understand. So for this purpose we need to cross verify. Okay, and whenever we are going cross verification, then it will give you. Fine. So there are two ways to perform binary subtraction. Two ways. Okay, means this is trick. I'm telling about the trick that जो भी बड़ा नंबर है, whichever number is maximum, just यदि उसको मैं साइन दिया हो तो उसका साइन हटा के छोटे वाले नंबर पे साइन कर दो. ठीक है, और फिर उसके बाद आप प्रॉब्लम को कैलकुलेट करो. यानी ये जो मैं बता रहा हूँ ये ट्रिक ऐसी है कि यहाँ पर आप क्या करने वाले हो कि आप एक बाहर माइनस लगा देते हो बड़ा सा, और अंदर इसमें माइनस लगा के और फिर 1 1 1 1 इसको कैलकुलेट करते हो. तो ये तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, बहुत ही सिंपल है, आंसर भी सही आ जाएगा. लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये तो आपने ट्रिक लगाई है. आप कोई एप्टीट्यूड का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप सॉल्व कर रहे हैं कंप्यूटर का प्रॉब्लम, और कंप्यूटर का प्रॉब्लम कंप्यूटर के तरीके से सॉल्व करना है. ठीक है, तो अब आपको क्या परफॉर्म करना पड़ेगा? यू नीड टू परफॉर्म 1s complement of number which is as it is, because no sign means as it is. If number is having sign, then perform complement. So 1s complement of sign number, this is 0 0 0 0. Yes or no? Now add these two number. If we are adding these two number, it will give you 1 0 0 1. So this answer is correct, but you are disagree with this answer, that this number is written in negative. And how do you say that this answer is correct? Because this is a computer calculated answer and it is written in 1s. If you want to cross verify the answer, so whenever one problem is given like this, so you need to cross verify, and cross verify is done by using 1s complement once again. Whenever you are using 1s, then 1s. Okay, so what is the result? Whenever this 0 is coming, then go for 1s complement. So this will become 0 1 1 0, and this is your right answer. This is negative answer, and this is our answer. Okay, any doubt? I can't understand about the sign. About what? Sir, sign. Sign. Yes, sir. कहाँ पर आपको नहीं समझ में आया? सर ये साइन चेंज का मेरे को नहीं समझ आया. जैसे यहाँ पे आंसर में नेगेटिव आया, तो ये चीज का समझ नहीं आया सर. देखो, आपको ऐसा नहीं समझना, आपको थोड़ा सा IQ लगाना है, बस थोड़ा सा IQ, है ना. ये आपने 9 - 15 लिखा है, करेक्ट? यस सर. ओके, तो 9 - 15 कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है कि माइनस क्या होता है. तो हमने क्या कर दिया कि केवल उस नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकाला जो नेगेटिव है. तो नेगेटिव का कॉम्प्लीमेंट निकाला, तो 1 में क्या ऐड करेंगे कि 1 आएगा? 0 ऐड करेंगे, है ना. एक्चुअली 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होता है और 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होता है. तो हमने करस्पॉन्डिंग प्लेसेस में ये कॉम्प्लीमेंट्स निकाल दिए. ओके, अब कॉम्प्लीमेंट्स निकालने के बाद ऐड किया इनको,
इनको ऐड ही करना है। ऐड करने के बाद मैंने क्या बताया था, यदि यहाँ कैरी का 1 बचता है तो आपको ये 1 ऐड करना है, और यदि कैरी का 0 बचता है तो आपको इसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल के ये आंसर निकाल देना। ये आंसर आप नेगेटिव में लिखेंगे, बट दिस इज नॉट एक्चुअल आंसर, तो आप उस पर बिल्कुल सोचे नहीं। एक्चुअली क्या है, मैं कंप्यूटर के पॉइंट से सोचता हूँ और आप सोचेंगे नेचुरल पॉइंट से कि आपका सही आंसर आना चाहिए। तो आपका सही आंसर कब आएगा, जब यहाँ 0 है तो 0 है तो इसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए, ऑटोमेटिकली दिस विल बी द राइट आंसर। यस और नो? यस सर, ओके। यदि नेगेटिव नंबर बड़ा है तो आंसर नेगेटिव आएगा ऑब्वियसली। तो ये कैसे पता लगेगा, इस पोजीशन में हम ये क्या करते हैं, लिमिट सेट करते हैं। एक और छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। सपोज एक नंबर दिया है 1001, ओके, और इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 101, फाइन। तो ये छोटा नंबर है, अब आप इसको नेचुरल वे में तो सब्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाओगे क्योंकि बोरो और इन सब की प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहला काम आपको करना है, सबसे पहला आपको काम करना है कि इसमें 10 ऐड करना है। 10 ऐड क्यों करना है, ताकि आप नंबर जो डिग्री है ना, जो मैक्सिमम नंबर होगा, चाहे वो साइन नंबर हो चाहे अनसाइंड हो। यदि उल्टा केस है, मान लो उल्टा केस है कि आपको बोला 10 सॉरी, इसको मिटा दूं, इसी का उल्टा प्रॉब्लम देख लेते हैं। यदि आपको ये बोल दिया कि आपको 101 में से 1001 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो भी आपको यहाँ पर 0 ऐड कर लेना है, ताकि दोनों तरफ जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो बराबर हो, है ना। तो अब हम इसको एक के बाद एक करते हैं। तो ये यहाँ पर हम परफॉर्म कर रहे हैं, किसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, किसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, दिस नंबर, ओके। और जो ऊपर वाला नंबर है वो एज इट इज लिखेंगे आप, 1001 एज इट इज, माइनस माइनस की जगह हो जाएगा प्लस, और आप पहले तो लिमिट लाइन खींच देंगे। लिमिट लाइन खींचने के बाद आपने यहाँ ऊपर कैरी के लिए एक छोटी सी लाइन बना दी है ताकि कैरी भी लिख सके, एंड दिस विल बिकम 1010, correct or not? Complement of 0101 is 1010. Now add these two numbers. So what is the result? 110 and 11 what? 11 is 0 and carry ka 1, and this carry will be shown here. So it simply indicates that result is positive. Result is a positive number. Okay, and then add this number over here. Add this number and this will give you 100. So this is 0, this is again 0, and this is 1. So if we add both the number, it will give you 100. And surprisingly, when you subtract 5 from 9, it will give you 4. So this is our answer, 4. Okay, now reverse is the case. If reverse is the case, just put 0101 as it is and take complement, 1s complement of this number. So what is the number? This is 0, this is 0, this is 1, next one is 1, and next one is 0. So likewise you can calculate the complement and put the limit line and just add both the number. If we add both the number 101, fine, 011 11 0 and carry 1, and this is 1011, and if and there is no carry in no carry after limit. So this shows that answer is negative. Okay, so when answer is negative, then take 1s complement. Okay, so whenever you are taking 1s complement, then this will become 0 1 0 and put one minus sign. So surprisingly this answer is correct, and this shows -4. Both the answers are same, correct or not? In case of positive is also same in magnitude, and in case of negative is also same in the magnitude, then we can verify the answer. So this is the case of 1s complement. Let me show you 2s complement number. यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप लोग। सर, हाँ, यस सर वो जो सेकंड वाला सम आपने बताया है
हाँ। जिसमें माइनस साइन है, तो वहां पे जो रिमाइंडर 0 बच रहा है, ठीक हाँ है। उसके बाद आपने कॉम्प्लीमेंट लिया, अगर रिमाइंडर में 0 की जगह 1 हो जाए तो 1 होगा तो आप ये 1 ऐड कर रहे हैं ना। ये कभी भी यदि सेकंड नंबर बड़ा होगा, नेगेटिव नंबर बड़ा होगा, तो ये हमेशा 0 बचेगा। आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितने भी बड़े नंबर ले लो, पूरी गारंटी है। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। ये पूरा क्लियर कर दूं स्क्रीन को। यस सर। हाँ सर। एक बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं हम, एकदम बड़ा एग्जांपल, है ना। सपोज एक नंबर दिया हुआ है 100110001, ये नंबर है। इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो 1011, ओके। ये छोटा सा नंबर है, यस और नो, ये है ना। यस सर। अब मैं एक्चुअली क्या क्या करना है आपको, कि जितने नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पर दिए हैं ना, उतने नंबर ऑफ जीरो इसके आगे पुट करना है। ये एग्जांपल मैंने जानबूझ के लिया है। वैसे तो आज मुझे 4 डिजिट के ही बताने थे, क्यों, क्योंकि बाकी फिर आप 8 डिजिट आराम से समझ जाओगे। तो अब आपको ये परफॉर्म करना है। तो इसके लिए स्टेप 1 है, ये आपको एज इट इज लेना है, एज इट इज, ओके। क्यों, क्योंकि ये अनसाइंड है। अनसाइंड को आप एज इट इज लेंगे तो 100110001, ओके। अब इसको क्या करना है, 1s कॉम्प्लीमेंट, 1s कॉम्प्लीमेंट, फाइन। 1s कॉम्प्लीमेंट जब आप लेंगे तो 0 की जगह हो जाएगा 1 1, कितने 1 आएंगे, 4 टाइम्स 1 आएंगे। ये भले आपने यूज किया है, लेकिन जब तक ये मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल नहीं होंगे, तब तक आंसर आपका गलत आते रहेगा। इसलिए हम ये 0 ऐड करते हैं, और इसलिए मैंने आपको इतना बड़ा नंबर लेके बताया। अब ये 1 का हो जाएगा 0, एंड दिस 0 का 1, एंड दिस 1 becomes 0, and this one also becomes 0, सॉरी। अब आप इन दोनों को ऐड कीजिए, इन दोनों को ऐड कीजिए। बार बार ये जो लाइन ड्रॉ करने का कॉन्सेप्ट है, ये यही है कि आपको इससे बाहर जो भी नंबर होगा वो पता लगेगा, ठीक है। तो 1 + 0 is 1, and 0 + 0 is 0, 0 + 1 is 1, 1 + 0 is 1, and 1 + 1 is 10. So 10 का 0 आपने यहाँ रखा, कैरी का 1 यहाँ रखा। 1 + 1 अगेन 10, 10 का 0 यहाँ रखा, कैरी का 1 यहाँ रखा। 1 + 1 is again 0, and 10, and कैरी का आपने यहाँ 1 रखा। 1 + 1 10, 10 + 1 11। कैसे आप लिखते हैं ये मैं आपको बता दूं। 0 1 1 के बाद आप जब 2 लिखते हैं, अब 2 ही नंबर है, तो आपका ये अपने आप 10 हो जाता है, क्योंकि अब मैक्सिमम नंबर यही है ना। आप मेरा नंबर सिस्टम का फर्स्ट क्लास देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देन 1 1, तो आपने नंबर क्या ऐड किया, 0 + 1 से 1 ही आता है, 0 + 1 या 1 + 0 से 1 आता है। लेकिन आप देख रहे हैं 1 + 1 से क्या आता है, 10 आता है। तो ये 1 + 1 करने से नेक्स्ट डिजिट आएगा 10, और यदि इसमें भी हम प्लस 1 कर दे तो इससे आता है 11। तो दैट्स व्हाई दिस 11 इज कमिंग, एंड कैरी का 1 यहाँ पर आ जाएगा। अब जब कैरी का 1 आया, तो दिस सिंपली indicates that the answer is positive number. Okay, now add this number to this place, rightmost place. So what is the answer? 1 + 1 0, and कैरी का 1, कैरी के 1 की वजह से ये 1 + 0 1 हो गया। और फिर अब इसके आगे तो कोई नंबर ही नहीं है, तो 1 1 0 0 0 1। ओके, दिस इज अवर फाइनल आंसर। क्लियर है। सब्ट्रैक्शन में नंबर ऑफ डिजिट्स हमेशा कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमेशा कम होती है या बराबर होनी चाहिए। तो यदि एक्स्ट्रा आती है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। अब यदि इसकी उल्टी प्रॉब्लम दी हुई है, ठीक है, काउंटर प्रॉब्लम, ये 1 हो गई। प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम आपको दिया है 1011 से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 1001, एंड देन 1001। तो आप क्या कर देंगे, सिंपल 4 टाइम्स 0 यहाँ पर ऐड करेंगे। ये नंबर एज इट इज, बिकॉज इट इज अनसाइन नंबर। अनसाइन नंबर हमेशा कैसा रहेगा, अनसाइन जो रहेगा वो आपको एज इट इज लेना है, एज इट इज। और जो साइन रहेगा उसको क्या करना है, या तो 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है या 1s कॉम्प्लीमेंट। अभी हम पहली मेथड देख रहे हैं, दिस इज अवर फर्स्ट मेथड, दिस इज अवर सेकंड मेथड। तो हम इसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। 1s निकाला,
1s निकालेंगे इसका और इसको एज इट इज, तो 4 टाइम्स 0 आपने लिखा, ओके, एंड 1 0 1 1 लिखा। सिमिलरली इसको आप लिखेंगे, आपको क्या करना है, बॉक्सेस के अंदर पूरा बनाना है, ये पूरे बॉक्सेस बनाएंगे, ठीक है। मैं अभी अलाइनमेंट की कोशिश कर रहा हूं, तो दिस 1 बिकम 0, 0 is 1 1, then 0 0 1 1 0. So this is our, why alignment is important, because आंसर निकालते टाइम एक भी 0 इधर का उधर हुआ तो पूरा आंसर जो है वो बदल जाएगा। अब आप इसको ऐड कीजिए, ऐड करने पर क्या है, 1 + 0 1 आया, 1 + 1 कितना आया, 10 आया, तो कैरी का 1 हमने यहाँ रखा। 1 + 1 फिर से 10 आया, तो कैरी का 1 हमने यहाँ रखा। 1 + 1 फिर से 10 आया, कैरी का 1 यहाँ रखा, एंड दिस 1 विल, and now this is 1, this is 1, and this is 0. It means no carry. No carry means this extra 0, this indicates the left most 0 indicates a negative result. So go for complement. ओके, अब आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए, 1s complement, 1s complement. So what will be the result? 1 becomes 0 1 1 1 0 0 0 1. आप ऊपर देखिए सेम आंसर है और इसके आगे लगा दीजिए माइनस. सो दिस इज योर आंसर. आंसर इन साइन मैग्नीट्यूड. इस आंसर को बोलते हैं साइन मैग्नीट्यूड. क्यों? क्योंकि साइन के बाद जो आंसर है वो मैग्नीट्यूड में आता है, एक्चुअल मैग्नीट्यूड में आता है. ठीक है, कोई डाउट यहाँ पर? नो सर. अब हो जाएगा. हाँ सर, 1s का हो जाएगा अभी. Yes. 2s वाला जो Yes, sir. कॉम्प्लीमेंट है. अब देखो 2s की जो मैजिकल मेथड है, 2s इज द मैजिकल थिंग. आप यहाँ 1s पे 1s आप पूरा अच्छे से कर लोगे, और नहीं बनेगा तो आप वीडियो फिर से देख लेना, ठीक है, आपको पक्का बन जाएगा. 2s स्लाइटली मॉडिफिकेशन है, और मतलब कंप्यूटर जो है ना, और जिसने भी ये नंबर सिस्टम 2s बनाया है बहुत ब्रिलियंटली बनाया है. मैं एक टेबल लिख रहा हूँ, है ना, तो एक टेबल स्टार्ट करते हैं. 4 टाइम्स 0 नहीं, 8 टाइम्स 0, तो कितना हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 डबल 0 डबल 1 डबल 0 डबल 1 डबल 0 डबल 1 डबल 0 डबल 1, then 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 and 1 0. See, this is hexadecimal, not hexadecimal table. हमने 4 बिट का एक नंबर लिखा. एक कंप्यूटर है जो सिर्फ 4 बिट का डेटा एक्सेप्ट करता है. ठीक है, आप मान लो कि सिर्फ इतनी ही जगह है, तो एक जगह पे 1 आ सकता है या 0 आ सकता है. तो वी आर टॉकिंग अबाउट 4 बिट कंप्यूटर, 4 बिट कंप्यूटर. और इसको ध्यान से देखना है ना, बहुत ही सिंपल सी बात है. यदि आपको 4 बिट का कंप्यूटर दिया तो आप कितने नंबर लिख सकते हो? आप टोटल 16 नंबर लिख सकते हो. यस और नो? यस सर. Yes, sir. क्लियर है ना? ये मैंने लिख के बताया है, पूरे नंबर मैंने लिखे, आप काउंट करोगे तो 16 आएगा. मैं काउंट भी कर देता हूँ, ठीक है. इक्विवेलेंट नंबर नहीं नहीं, मैं काउंट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे आपको समझाना है आंसर. तो 16 नंबर है. अब 16 में से कितने नेगेटिव रखोगे आप? फेयर टर्म पॉलिसी रखनी है तो नेगेटिव 7 सर. 8 8 8 सर. 8 नंबर नेगेटिव. फेयर टर्म पॉलिसी 8 नंबर नेगेटिव. और कितने नंबर पॉजिटिव रखोगे? 8 सर. 8 नंबर पॉजिटिव. ठीक है, आप मानते हो इस चीज को?
हाँ सर। आप चाहते भी हो यही, यस सर। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब साइन कैसे पता लगेगा, है ना, 8 नंबर पॉजिटिव 8 नंबर नेगेटिव, तो 8 नंबर पॉजिटिव और 8 नंबर नेगेटिव यदि आप देखोगे तो 1 2 3 और 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर आपने लिखा 1 2 1 2 1 2 1 2 और फिर 0 1 0 1 0 1 0 1। आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 बिट से आपके 8 नंबर क्लियरली बन जाते हैं, यस और नो। 0 1 2 3 4 5 6 और 7, यदि बाइनरी में आप कैलकुलेट करोगे तो यही रिजल्ट आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम क्या करते हैं, ये जो लास्ट बिट है इसको यदि 0 आ रहा है तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव है, और 1 आ रहा है तो इसको बोलेंगे नेगेटिव, ठीक है, यस और नो। यस सर, यस सर। अब हम एक नॉर्मल प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें रिजल्ट जो है वो इसी रेंज के अंदर होगा, इसी रेंज के अंदर होगा, मतलब मैक्सिमम हमारा रिजल्ट आएगा -8 तक, और मतलब सबसे मिनिमम रिजल्ट -8 तक आएगा, और सबसे मैक्सिमम रिजल्ट जो आएगा वो 0, हाँ मैक्सिमम रिजल्ट 7 तक आएगा। तो मैं एक नंबर लिखता हूँ, एक नंबर मैंने लिखा 101, और इसमें मैंने सब्ट्रैक्ट या 0 सपोज हाँ 101 लिया, और 101 में मैंने 11 ऐड किया, तो क्या आंसर आएगा इससे। 4 बिट का है तो ऑटोमेटिकली 0 इज हियर, एंड द आंसर इज, आपको ऐड ही करना है, अभी आपको सब्ट्रैक्शन नहीं सिखाया गया है, तो आप इसको ऐड करोगे तो ये आ गया 0, यहाँ कैरी का 1 बच गया, फिर से 0 आ गया, फिर कैरी का 1 बचा, फिर से 0 आ गया, और फिर आ गया 1, है ना, तो ये आया 100। 5 + 3 8 होता है, और 8 होने की वजह से ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा, और ये आंसर जो आएगा 5 + 3 करने पर कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं आता, ये -8 आंसर दे रहा है, -8 दे रहा है। अभी आप सिर्फ इतना ही समझो कि -8 दे रहा है, सर क्यों बोल रहे हैं, आप अपने दिमाग में बैठा के रखो, ठीक है। वैसे तो है ये, यदि अनसाइंड होता तो +8 होता, पर साइंड होने की वजह से -8, तो हमको और छोटे नंबर लेने पड़ेंगे, और छोटे नंबर लेते हैं हम। अब मैं 2s कॉम्प्लीमेंट डायरेक्टली स्टार्ट कर रहा हूँ, एडिशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है आई थिंक, क्योंकि आपको कहीं पर भी कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना पड़ता है। अब लेकिन हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है 4 बिट की, और हम 4 बिट में साइन नंबर की बात कर रहे हैं। अभी मैं आपको कंफ्यूज करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करूंगा। 11 यदि आप ऐड करना चाहते हैं 11 के साथ, तो आप इसके आगे 2 0 रख दीजिए, स्टैंडर्ड है ये, क्योंकि आपका 4 बिट, आपको यदि कहा गया है कि 4 बिट कंप्यूटर है तो ये इस तरह से ऐड करना है। तो 110 होता है, यहाँ 1 किया, और ये 111 हो गया, और इसके बाद फिर कैरी का 1 आया, तो ये आंसर आया। आप देखोगे कि 3 + 3 कितना होता है, 3 + 3 होता है 6, ओके। तो ये लिखा हुआ है 3, यहाँ से फिर 3 काउंट करो, 1 2 3, तो सेम नंबर आता है या नहीं आता है, दिख रहा है, करेक्ट, यस और नो। यस सर। यस सर। यस सर। अब आपको मैं एक सिंपल सा दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं, जिसमें आप 4 - 2 करेंगे, ठीक है, 4 - 2, तो ये हमने लिया 4 लिखा है 0 1 0 0, एंड -2 इज 0 0 1 0, ये हमारे पास दिया है। अब हम 2s कॉम्प्लीमेंट में काम कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, 2s कॉम्प्लीमेंट में, इसका आंसर 2 आना चाहिए। तो 2s कॉम्प्लीमेंट में होता ये है कि ये नंबर हम एज इट इज उतारते हैं, ये नंबर हमने एज इट इज उतार दिया जो पॉजिटिव है। 2s में बस इसका 1s कॉम्प्लीमेंट आप लिख के 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 1s कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा इसका, 1 1 0 1, और आप यहीं पर 1 करेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे 2s, ठीक है। ये तो 1s है, लेकिन ये पूरा होल जो नंबर बनेगा ये 2s में आ जाएगा। अब इस तीनों को ऐड करना है, 0 0 लगा दीजिए आप, ताकि नहीं भी लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और लिमिट लाइन जरूर खींचें, फाइन। सो ये लिमिट लाइन आपने खींच दी है, और इसके बाद आपने कैरी वाला भी बॉक्स बना दिया है, ये कैरी का बॉक्स है। तो 1 1 0 होता है, 10 होता है, 10 और कैरी का 1, सो 1 0 0 इज 1, एंड 1 1 10, और फिर से ये 1 1 1 10, और ये यहाँ पर बचा, ये जो बचा ये हो गया कैरी,
और इस कैरी की वजह से हमको पता लगेगा कि आंसर इज पॉजिटिव। ओके, एंड आप सरप्राइजिंगली देखोगे तो 4 - 2 कितना होता है? 2 होता है। तो ये 2 आया कि नहीं आया? सर ये पॉजिटिव यस सर। क्या चीज? हाँ, ऊपर तो आपने 0 को पॉजिटिव और 1 को नेगेटिव लिखा है ना, किसमें? यहीं पे जो आपने 4 बिट कॉम्प्लीमेंट पढ़ा है। अभी 4 बिट कॉम्प्लीमेंट पे अभी 4th बिट कहाँ है? लेकिन वो आप देखो ना, 5th बिट है वो तो। हाँ, 5th है ना? 4th है क्या वो? नहीं सर 5th है सर। 5th है। अब देखो -2 के लिए रिजल्ट, मैं अब आपको एक चीज बता रहा हूँ, इस टेबल में एक वैल्यू सर ये लिख रहा हूँ। 2s कम्प्लीमेंट फिर से बताना सर। ये पूरा 2s कॉम्प्लीमेंट में बता रहा हूँ। इतने पॉजिटिव नंबर होंगे, यस और नो? क्योंकि यहाँ पर 0 लिखा है। तो 0 1 2 3 4 5 6 और 7, यस और नो? यस सर। अब अगला नंबर है -8, फिर है -7। आओ, ये सारे प्लस है ना? एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर -8 तो 100 आना चाहिए, क्योंकि सर उसमें पहला जो है वो 1 जो इंडिकेट कर रहा है माइनस को। चलो आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन उसके पहले मैंने ये जो बताया है यही तो मैजिक है सिस्टम का। अब आप देखो, आप जब पावर लिख रहे हो ना, यहाँ पर इस जगह पे पावर लिख रहे हैं, इस जगह पे, ठीक है? तो मैं कुछ वैल्यू रख रहा हूँ, उसको ध्यान से देख लो आप। और मैं अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, इसका उल्टा, उसका आंसर भी वही आएगा, देखना। तो इस पोजीशन पे 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2 and 2 to the power 3। तो और माइनस में, ये माइनस में लिखा, तो ये क्या हो गया एग्जैक्टली इसको जब हम लिखेंगे हमारी समझ में आने वाले नंबर में, तो ये हो गया 1, ये 2, ये 4 और ये -8। यस और नो? यस सर। बस ऐसा मान लो। अब मैं इसका उल्टा सॉल्व करके बता रहा हूँ। 0 0 1 0 एंड 0 1 0 0, इसको माइनस करना है आपको। इसका 2s कॉम्प्लीमेंट आप निकालेंगे, और इसका 2s कॉम्प्लीमेंट नहीं निकालेंगे, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं लिखा, 0 0 1 0 लिखा। इसका 2s कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? पहले आप लिखोगे 1, फिर 0, फिर 1 1 और इसमें 1 ऐड करोगे, बस इट विल बिकम 2s कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? यस और नो? ये 2s है और ये क्या सर है? हम ऐसा कर सकते हैं, इसे पहले कन्वर्ट कर लें नंबर में, फिर इसे माइनस कर लें। नहीं बेटा, वो सब करना रहता तो फिर हम इतनी, मैं कंप्यूटर की मैथ्स ही तो बता रहा हूँ कि कंप्यूटर कैसे समझ रहा है। अभी आप इस मैथ्स को देखोगे ना, तो आप एग्री हो जाओगे। बस थोड़ा सा एक आध दो डाउट आएगा, लेकिन आप लाइफ टाइम के लिए एग्री हो जाओगे इस बात से। ठीक है? तो 1s कॉम्प्लीमेंट पहले निकालते हैं और उसके बाद सिर्फ 1 ऐड करना है, सिर्फ 1। पूरे टाइम्स में 1 नहीं, 4 टाइम्स 1 नहीं, सिर्फ 1 ऐड करना है। ठीक है? तो इट विल बिकम 2s कॉम्प्लीमेंट ऑटोमेटिकली। ठीक है? अब आप इन दोनों नंबर को ऐड करो, तो ये आ गया 0। यस और नो? एडिशन तो आपको पता ही है, सारा ऐड ही करना है। और यहाँ पर 1 बचा तो ये 1 आया, और फिर ये 1 बचा तो ये 1 आया, और इसके बाद ये 1 आया। और यहाँ पर क्या बचा? कुछ नहीं बचा। इसका मतलब है आंसर इज नेगेटिव। यहाँ तक कोई डाउट है आपको? नो सर। नो सर। नो डाउट। सर अब ये आप 0 ये, आया इसलिए सर पॉजिटिव होना चाहिए सर। रुको तो एक सेकंड, बस रुको एक सेकंड, इसके बाद जितने डाउट है ना सब पूछना, बस एक सेकंड रुक जाओ। ये वैल्यू बॉक्स हमारे पास रखा हुआ है, क्या है? -8 4 2 1। ये वैल्यू बॉक्स यहाँ से, यही बाइनरी का 4 बिट का वैल्यू बॉक्स है। ठीक है? अब इसमें 1 1 1 0 रखो, और इसके करस्पॉन्डिंग वेट्स जो आ रहे हैं, सबसे पहला जहां 1 लिखा है वहां -8 है। दूसरा क्या लिखा है? 4 4 क्या? ये 4 एज इट इज 2, और ये 0। ठीक है? क्योंकि 0 के आगे तो 1 है, लेकिन यहाँ पर 0 आ रहा है आंसर में। अब इनको ऐड करो तो कितना आ रहा है? -2 आ रहा है। यस सर। आंसर हमारा सही है कि नहीं? भाई मैंने तो इसी से निकाला ना आंसर, यही तो ट्रिक है।
सर ये वाला तो थोड़ा समझ में नहीं आया था, लास्ट वाला। सर एक बार भाई मैंने क्या बोला कि लास्ट वाली पावर को हम पॉजिटिव ना लिख के क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे लास्ट वाली को, क्योंकि साइन बिट है। तो जहां पर भी वन साइन होगा वहां पर ये माइनस आना चाहिए। अब आप देखो कि ये वन की प्लेस पे आप क्या लिखोगे, वन की प्लेस पे आप लिखोगे -8। ठीक है, ये जो फोर्थ प्लेस है उसको आप -8 लिखोगे, और ये जो थर्ड है बाकी सब पॉजिटिव है, बाकी सारे पॉजिटिव लिखे, केवल यही बार नेगेटिव लिखा है। एक और एग्जांपल से हम क्यों ना समझे, यस और नो? सर एक और एग्जांपल समझ लेते ना, उसमें क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, है ना? नीचे वाला मैं रहने देता हूँ, पॉजिटिव वाला तो आप समझ ही चुके हो, तो पॉजिटिव वाले की तो बिल्कुल, पॉजिटिव में किसी को कोई डिसएग्रीमेंट नहीं आता है, मुझे अच्छे से पता है। अब हम ऐसा करते हैं कि दो नेगेटिव नंबर लेते हैं, दोनों नेगेटिव नंबर को ऐड करना है। ठीक है, तो हमारा एक नंबर है 4 और दूसरा नंबर है 4। -4 0 1 0 0 एंड -4 0 1 0 0। -4 और -4 को ऐड करने पर ये वाला आंसर आना चाहिए 1 0 0 -8 आना चाहिए। ठीक है, और आप क्यों मतलब प्रॉब्लम में है वो भी मैं बताता हूँ। एक्चुअली आप ये सोचते हैं कि ये जो नंबर है वो आना चाहिए आपका -0, और फिर ये होना चाहिए -1, फिर ये -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। आप ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि मैंने लेफ्ट मोस्ट बिट को क्या बोल दिया है, 1 होगा, है ना? कुछ लोग ऐसा ही सोच रहे हैं, यस और नो? यस सर। लेकिन -0 तो होता ही नहीं है। सर यस, +0 भी नहीं होता, ऊपर +0 भी है। +0 मतलब जीरो, ये तो अनसाइंड है, इनको हम प्लस बोल ही नहीं रहे हैं। ये मैंने लगा दिए अलग बात है, पर ये अनसाइंड है। ये इतनी रेंज जो है वो अनसाइंड, और इतनी रेंज है जिसके आगे माइनस लगता है उसको हम साइन बोलते हैं। ठीक है, तो आप +0 तो फिर भी बोल सकते हो, पर -0 कभी नहीं बोलते। मतलब यदि लिंग्विस्टिक में जाओगे तो आप मिनिमम इतना तो कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये जो मेथड है कंप्यूटर की, ये जो मेथड है ये 2s कॉम्प्लीमेंट को बहुत फॉलो करती है। तो यहाँ पर भी 2s निकलेगा और यहाँ पर भी 2s निकलेगा, यस और नो? भाई यस सर। -4 कितना होता है, -8 होता है, तो हम -8 निकाल रहे हैं। अब इसका 2s कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, 1 0 1 1 +1। ओके, क्योंकि सीधी सी बात है कि इसका 2s निकालना है और इसका भी 2s निकालना, 1 0 1 1 और +1। ठीक है, दोनों नेगेटिव नंबर है इसलिए। अब मैं एक काम करता हूँ, ये जो इतना दिमाग खराब करने वाला है उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, और इसको भी मैं ऐसे लिख देता हूँ। नाउ अब ये सारे नंबर आप ऐड करो, और देखना ये है, मुझे याद है, हाँ, फोर्थ नंबर क्या बनेगा, 1 + 1 + 1 + 1, 4 टाइम 1 दिया है, 0 1 2 3, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4, 4 टाइम्स 1 का आंसर आता है 100। क्या आता है, 100। तो इससे अच्छा ये है कि ये तो बड़ा माथापच्ची लग रहा है, तो इसका 2s कॉम्प्लीमेंट का एडिशन पहले लिख देते हैं। तो 1 0 सिर्फ मैं इतना ऐड कर रहा हूँ, 4 टाइम्स एडिशन थोड़ा टफ पड़ रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को ऐड करने पर क्या आएगा, 1 1 0 0। सर किस 1 1 0 0, इन दोनों को बस, ये पहला 2s कॉम्प्लीमेंट बना और ये दूसरा भी 1 1 0 0 आएगा, यस और नो? यस सर। ओके, यस सर। हाँ, अब हम इनको ऐड करते हैं। ठीक है, देखते हैं आंसर आता है कि नहीं आता है, लेट अस सी, क्योंकि मेरे को तो बड़ा डाउट जा रहा है, पर फिर भी देखते हैं आता है कि नहीं आता है ना? ये हुआ 0, ये हुआ 0, 1 1 कितना होता है, 10 होता है, सर 10 का 10 0, और ये 1 लिखा। 1 1 + 1 + 1 कितना होता है, 11 होता है, 11। ये 11 आ गया। ठीक है, अब 2s कॉम्प्लीमेंट में अच्छी बात ये होती है कि यहाँ 1 आए चाहे 0 आए, वो हम डिस्कार्ड कर देंगे, और नहीं करना है तो मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंप्यूटर तो इसको वैसे भी डिस्कार्ड करना, आपके पास यही रिजल्ट आया है। अब आप
वैल्यू बॉक्स जो आपकी बनी हुई है, वैल्यू बॉक्स क्या बना हुआ है, 1 2 4 -a, यहाँ पर पुट करो तो यहाँ 1 है, बाकी सारी जगह पे 0 है। इसको मल्टीप्लाई करके देख लो क्या आंसर आ रहा है, -8 आ रहा है, सर -8 ही आ रहा है आ रहा है ना, यही तो चाहिए ना आपको। सर। यस और नो, यस और नो। अब जैसे ये -5 लिखा है, -5 कैसा लिखा है, 1 0 1 1। आप कहते हो नहीं ये 11 है, या आप कहते हो नहीं ये -3 है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप वैल्यू बॉक्स पे जाओ, इस वैल्यू बॉक्स, ये बहुत साइंटिफिक वैल्यू बॉक्स है, साइंटिफिक वैल्यू बॉक्स है, और ये 2s कॉम्प्लीमेंट वैल्यू बॉक्स है। तो अब आप ये देखो, जितना भी बिट बोलेगा ना, हमेशा लास्ट बिट को आपको क्या रखना है, माइनस रखना है। अभी तो टाइम हो गया है, कल एक और क्लास लेनी पड़ेगी मेरे को, तो कल मैं आपको बहुत बड़े आंसर वाला बताऊंगा। बहुत, जिन लोग ए सेक्शन वाले उन लोगों ने तो देखा हुआ है, बाकी जो बी सेक्शन वाले उन्होंने नहीं देखा वो बड़ा वाला आंसर। तो अब हम यहाँ पर फिर से -8 4 2 1 लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ हमने पुट रखा, पुट किया 1 0 1 1। अब क्या हो रहा है, -8 + 0 + 2 + 1, क्या आया आंसर, -5 आया। -5। और ये -5 -5 के आगे ही लिखा Yes. है ना, 1 0 1 1 है ना ये पूरा नंबर। यस तो सर। ये जो चीजें हैं ये गलत है। ये जो तुम ये जो बता रहे हो ना, इसको बोलते हैं साइन मैग्नीट्यूड, साइन मैग्नीट्यूड। तो इस पे ध्यान मत दो, है ना, साइन मैग्नीट्यूड। और ये जो ये कहलाता है, ये इधर जो आंसर आ रहा है इसको बोलते हैं 2s कॉम्प्लीमेंट। 2s कॉम्प्लीमेंट इज द मोस्ट नेचुरल नंबर सिस्टम, मोस्ट नेचुरल। और कंप्यूटर में इससे एडिशन परफॉर्म करना बहुत आसान होता है, ठीक है। यस और नो। यस सर। अब आप 2s, हाँ, अब आप क्या करो कि 2s कॉम्प्लीमेंट के जितने भी मैथमेटिक्स है उसको सॉल्व करके रखो, सिर्फ सॉल्व करो। 1s 2s जितने भी सॉल्व करने करो। कल मैं आपको कंप्यूटर में कैसे 1s और 2s रिप्रेजेंट होता है वो बताऊंगा, ठीक है। और एक रियल एग्जांपल, रियल एग्जांपल क्या है हमारे पास, अनसाइंड इंटीजर का है। अनसाइंड, सॉरी, शॉर्ट इंटीजर जो होता है ना, वो 2 बाइट का होता है। तो 2 बाइट का एग्जाम्पल बहुत आसान होता है, तो हम इसको करके देखेंगे कल, ठीक है। और इसको प्रोग्रामिंग में करके देखेंगे। अभी तो हमने मैथमेटिक्स में किया, तो 4 बिट का तो कोई डेटा टाइप ही नहीं होता है, तो हमको मैथमेटिक्स में करना पड़ा। लेकिन यदि आप प्रोग्रामिंग में करना चाहते हो रियल टाइम पे, और आप देखना कि जो मैंने मैथ्स बताया, जो मैंने मेथड बताई है ना 2s कॉम्प्लीमेंट की, वही यूज होती है, वही आपको रिजल्ट निकालने में हेल्प करती है। जब आप 2 नंबर लिखते हो और ओवरफ्लो होता है तो आंसर किस तरह से आता है। और ये 2s कॉम्प्लीमेंट की ब्यूटी देखो, अभी तक हम क्या सोचा करते थे 1s कॉम्प्लीमेंट में, कि ये एक्स्ट्रा 1 आया तो पॉजिटिव नंबर होगा, यस और नो। यस सर। Yes, sir. लेकिन Yes, sir. लेकिन 2s में बिल्कुल आपने देखा, 2s में आपने देखा कि -2 -4 और -4 को ऐड करने पर इससे कोई मतलब ही नहीं है। ये तो हमारे पास बकेट 4 बिट का ही है ना, तो ये 4th बिट जो है वो बह जाएगा, बाहर निकल जाएगा। केवल हमारे पास 1 0 0 और 1 ही बचेगा, और इससे जो आंसर आया एकदम नेचुरली -8 ही आया। तो ये पूरा मैथमेटिक्स समझाने के पीछे रीजन सिर्फ इतना था कि आप समझ सको कि ओवरफ्लो क्या होता है। कल हम एकदम रियलिस्टिक वे में एक्सेल शीट में देखेंगे कि कंप्यूटर में किस तरह से 1010 को स्टोर करते हैं और फिर वो किस तरह से रिजल्ट देता है। तो कल किसी की मेंटर मेंटी मीटिंग तो नहीं है? No, sir. ओके, एक सेकेंड। हाँ, तो मैं इसके बाद बात करूंगा, पहले मैं ये रिकॉर्डिंग यहाँ फिनिश कर रहा हूँ। So with this we finish 4-bit binary subtraction addition using 1s complement and 2s complement. We will see the next part, how to store short integer in next class. Okay, so thank you. Yes.